Okay, so Assalamu alaikum everyone. Um, First of all, I will start with my introduction. मेरा नाम उसामा है और मैं क्यू ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ अफिनिटी में. So, first of all, to start this series, the point for starting this series actually working for to put some work for QA community. क्योंकि अभी तक हमने क्यूए कम्युनिटी के लिए उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से हो सकता है क्यूए कम्युनिटी में. और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी. सो यस, सो आई हैव एजेंडा for today as well. So I am just give me a moment. I am sharing my screen. Okay, just give me a moment. Okay, so yes, here is our agenda for today. What we are going to discuss. First point is actually the brief discussion on QA market and trends. So, before starting, uh, I want to know how many of you are from manual background and how many of you are from automation background. So, for just, I just want to know. You can raise hand if you are from manual. Just raise your hand. And the automation ones. Okay, so I'm going to start now to discuss about the QA marketing trends. अब मैं इसको इस तरह से डिस्कस कर लेता हूँ कि आज से 2 साल पहले हम अपनी QA की मार्केट को देखें तो वो किस तरह से थी. तो एक्चुअली अगर मैं इस साल की बात करूँ तो मैंने इससे ज़्यादा हॉट मार्केट नहीं देखी ऑटोमेशन के परस्पेक्टिव से. The positions I'm seeing right now for automation, I haven't seen this that much positions of that much openings for automation. So if you want to uh, break into automation market, this is the time actually. This is the time you can break into the automation market, and if you are a manual, you should you should break into a automation market because in near future if you want to survive in QA you should have to know about the automation. And I'm not saying that manually would there is no role for manual. Actually there is nothing, no automation without manual. If you are a good manual tester you can become a good automation tester as well. So the trend in so there is some tools trending right now. We are always see Selenium, Cypress, a Playwright, a new tool from Microsoft. So yeah, uh, so we will start with what is actually automation testing. So if you're doing manual, you know you have to go through with a lot of recursive tests every sprint. So every release, every sprint, you have to do the same test again and again. There is no change between them, so you have to perform them again and again. So there is what testing is. Automation testing comes when you are doing a same testing again and again. You should automate this. And if I go to another slide, this is actually for Selenium, but actually automation testing can do all of these. Automation testing can do all of these. It can do functional testing, it can do regression, sanity, DB, everything it can do. So if you are doing manual testing recursively day by day, doing the same thing, you should automate it. It will actually it will reduce your efforts as well as human error as well. That if you are doing the same thing again and again, it might be possible that you are going into some error, there is some human error, so you should be automating it. And to break through in the QA automation market, this there is nothing you can't do. You can do it if you are a known
dev background, you still can do it. As you have to just start by little, day by day. Just start learning. Just start learning. So this is the whole purpose of this series, to start to strengthen our QA community. If there is a lack in automation, we are going to fill you in this. So my next point is test automation tools. There are some hot tools going around, like Selenium, Cypress, and Playwright. I already told you. For load testing, there is JMeter, K6. For API testing, Postman, and a lot of tools. So and every tool has its capability. Uh, to In this series, we will be starting first with Selenium. So yes, we will be doing Selenium with Java. Eh, So why Selenium? Selenium has its benefit with it. Selenium can do multi-browser testing. Actually, Selenium is so much versatile right now. Uh, Cypress has its own benefit as well. You don't have to integrate a separate. You don't have to integrate a separate automation. Uh, just give me a moment. Just give me a moment. Am I audible? जी जी Yes, साउंड you है। are, sir. Okay, okay, okay. I will continue. So yes, I'm talking about the automation tools. So um, I was there in Cyprus actually. What Cyprus is offering. So अब साइप्रस में इस तरह से है कि आप अगर सेलेनियम में कोई सेपरेट इंटीग्रेट करें, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, एपीआई टेस्टिंग के लिए रेस्ट एश्योर्ड यूज़ करें, तो वही चीज़ आप साइप्रस में आपको बिल्ट इन मिल जाएगी। फिर जैसे कि आप सेलेनियम में जेएस एग्जीक्यूटर यूज़ कर रहे हो, आपको साइप्रस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली मोस्टली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज़ करने की, क्योंकि साइप्रस के अपने बिल्ट इन फीचर हैं शैडो के लिए। जैसे आपने कभी किस साइट पे गए होंगे तो आप देख होंगे, यहाँ पे साइड पे एक चैट का आइकन आ रहा होता है, आप उसे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। अब उसकी टेस्टिंग करना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि वो आपकी शैडो रूट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनको आप अगर सेलेनियम में करें तो आपको जेएस एग्जीक्यूटर यूज़ करना पड़ेगा, अगर साइप्रस कर रहे हैं तो साइप्रस आपको बिल्ट इन कमांड प्रोवाइड कर देता है शैडो के टाइप। तो ये मैं बच्चा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन साइप्रस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि साइप्रस में ये लिमिटेशन है कि अब साइप्रस आपकी मल्टी ब्राउज़र टेस्टिंग नहीं कर सकता। आपकी पैरल आप एक वक्त में अगर चाह रहे हैं कि आप दो टेस्ट आपके डिपेंडेंट हैं आपस में, और आपने दो टेस्ट साथ ही, फॉर एग्जांपल दो चैट चल रही हैं, आप एक चैट से मैसेज करें दूसरी चैट पे और उधर से रिप्लाई करें, तो अब ये लिमिटेशन आ गई आपके पास साइप्रस में। तो यहाँ पे साइप्रस, यहाँ पे आपका आ जाता है सेलेनियम, जो आपको हैंडल कर लेता है मल्टी ब्राउजिंग। तो ये कुछ मैं टाइप्स बताना चाहते हैं कि टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स कौन कौन से हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और हर आपका टूल आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कि ये नहीं कि आप कोई भी टूल अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दो। यू शुड हैव टू स्पेंड सम टाइम, एनालाइज करना है आपने कि विच टूल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर माई प्रोजेक्ट। तो ऐसे नहीं टूल आपने यूज़ करना, आपने उसको एनालाइज करना है कि यस दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। So going on further, sorry, I forgot. You can post your questions in the chat box. In the meantime, so in the end of the this session, we will pick your questions and try to answer all of them. So yes, codeless testing with Selenium IDE. So this is our first topic, starting with a hands-on Selenium IDE. क्योंकि आपने अगर मूव करना है सेलेनियम के ऊपर तो आपको पता, तो हम मूव करेंगे पहले सेलेनियम आईडीई पे। ये टॉपिक चूज़ क्यों मैंने किया, क्योंकि ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना था जो उन टेस्टर्स के लिए, उन मैनुअल टेस्टर्स के लिए जो नॉन डेव बैकग्राउंड से हैं, तो उनको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे, क्योंकि इसमें मिनिमल है कोडिंग। तो उनको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये इजी हो जाएगा कि आप आगे से सेलेनियम पे मूव कर जाएंगे इजीली। तो और इसको हम कहते थे द राइज ऑफ नो कोड,
कि आपको कोड की ज़रूरत नहीं है, आप कोड के बगैर ही अपनी किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कोडलेस टेस्टिंग विद सेलेनियम आईडी। तो इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं आपके पास कुछ कि आपने क्या करना है, आपने जाना है पहले सेलेनियम की ऑफिशियल साइट पे। मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप सब मेरे साथ सिंक रहें, और मैं यहाँ पे भी शेयर भी कर देता हूँ चैट में लिंक, ताकि yes, test complete is another tool for automation. Thank you, Mohsin. So we are going into Selenium ID, and here you have to select the Chrome download Firefox. You can do for both. I have already added this extension, तो आप इसको अपने एक्सटेंशन को ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही आपके पास एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तो, और ये अगर कुछ डेव्स ने भी ज्वाइन किए तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ टेस्टर्स के लिए नहीं है, ये डेव्स के लिए भी एक अच्छा टूल है कि जो कोई फ्रेमवर्क बिल्ड नहीं करना चाहते ऑटोमेशन का, वो बस कुछ उनके रिकर्सिव टेस्ट केसेस हैं जो डेली बेसिस पे वो चलाना चाहते हैं, तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर देम। तो अब यहाँ पे जब आप आएंगे एक्सटेंशन में, you will see Selenium ID here. Let me close it and start it from start. This is what you see when you click on it. आप यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि रिकॉर्ड अ न्यू टेस्ट, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लोज सेलेनियम आईडी। तो हम अभी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेंगे QA ऑटोमेशन, ठीक है, हमने इसका। और इन द मीन वाइल हम यहाँ पे एक आप जब जाएंगे सेलेनियम आईडी पे तो यहाँ पे एक डॉक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेक योर हैबिट टू रीड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई टूल आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसको डॉक्स नहीं पढ़े, आप सिर्फ गूगल कर रहे हैं चीज़ें, या फिर तो आप मिल जाएंगी चीज़ें, लेकिन अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उधर से ही पहले मिल जाएंगी। तो अपनी हैबिट एक बना लें कि डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन को आपने ज़रूर पढ़ना है, ये अपनी हैबिट बना लें। तो मैं, हाँ जी, तो यहाँ पे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अभी एक टेस्ट बना लेते हैं, नया टेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह लेता हूँ लॉगिन कर लेता हूँ। हमने टेस्ट करना है, हमने रिकॉर्ड, मैं आपको बता दूँ आईडी ये है क्या, ये एक्चुअली एक प्लग एंड प्ले टूल है सेलेनियम आईडी, जिसमें आपको कोड नहीं करना पड़ता। आप अपना जो, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैन्युअली आप एक लॉगिन पेज टेस्ट कर रहे हैं, आपने वही चीज़ करनी है। आपका जो सेलेनियम आईडी है वो आपका ट्रैक करेगा जो आप कर रहे हो, और उसको रिकॉर्ड कर लेगा, जो आप उसके बाद टेस्ट केस कभी भी चला सकते हो, एंड प्लग एंड प्ले कर सकते हो। तो ये इट इज़ अ प्लग एंड प्ले टूल। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। तो मैं करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, तो मुझे कहेगा कि आप एक लिंक प्रोवाइड कर दो, इस लिंक पे, जिस लिंक पे आप टेस्टिंग, तो मैं एक टेस्टिंग लिंक है, मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देता हूँ। वैसे आपने काफ़ी को पता ही होगा इस लिंक के बारे में, तो लेट मी शेयर विद एवरीवन, लेट मी शेयर इट इन द चैट। ओके, सो यस, हम यहाँ पे आ गए। अब ये हमने इस सेशन पे अपनी इस लिंक पे हमने जाना है और अपनी रिकॉर्डिंग करनी है टेस्ट की। तो मैं स्टार्ट रिकॉर्ड करूँगा तो आप देखेंगे ये इस लिंक पे लैंड कर गया, और यहाँ पे आपको नज़र आ गया कि सेलेनियम स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, सेलेनियम आईडी इज रिकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना, आपके पास काफ़ी सारी साइट पे देखेंगे तो आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अभी इस पे हम जाएंगे फॉर्म ऑथेंटिकेशन पे, क्योंकि हम लॉगिन का टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पहले से ही मिल जाएंगी यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपने क्या करना है, टॉम स्मिथ, पासवर्ड है सुपर सीक्रेट पासवर्ड। अब इसको मैं क्लिक करूँगा
तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ तक रिकॉर्ड हो गया। और एक मज़े की बात, अगर किसी को सेशन वगैरह का पता हो, आपने अगर किसी चीज़ पे सेशन लगानी है तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे सेलेनियम आईडीआर। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। सेशंस लगा सकते हो, स्टोर कर सकते हो वैल्यू को, वेरीफाई कर सकते हो, वेट फॉर कर सकते हो। यानी कि आपके पास जो चीज़ें एक्चुअली, अगर किसी ने पहले यहाँ पे जो है ऑटोमेशन बैकग्राउंड से, उसको ये पता होगा कि आपके पास ये आप कोड में जाके ये चीज़ें करते हो सेशन वगैरह। तो यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे सर्च लगा देता हूँ, मैं कह देता हूँ ये जो टेक्स्ट है, जब भी ये टेस्ट केस चले तो असर्ट हो कि मेरे पास लॉगिन होने के बाद ये टेक्स्ट आ जाए। मैं ये असर्शन लगा रहा हूँ कि जैसे ही लॉगिन हो, ये हर दफ़ा असर्ट करे कि ये टेस्ट केस, ये आपका, इसने यहाँ पे इसको गेट करना है। तो मैं अब जाता हूँ अपने आईडी के पास और मैं करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी। आपका टेस्ट केस रिकॉर्ड हुआ है। तो फर्स्ट ये है ओपन यूआरएल, ओपन यानी कि कर रहा है आपका यूआरएल को हिट कर रहा है। उसके बाद आपकी विंडो साइज़ को सेट कर रहा है, क्लिक कर रहा है ऑथेंटिकेशन फॉर्म में, आपका क्लिक कर रहा है आईडी यूज़र नेम को, उसमें आईडी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल रहा है, यानी कि जो काम आपने मैन्युअली किया था वो ये सब कुछ कर रहा है। तो अब इसको चेक भी करना है, तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे रन टेस्ट। जैसे मैंने रन टेस्ट पे क्लिक किया, अब देखें ये खुद सब कुछ टेस्ट कर रहा है। उसने क्या किया, सब कुछ टेस्ट किया। और यहाँ पे आपने देखा कि आप अगर इस लॉग में जाएँ तो आपको सब कुछ वही टेस्ट जो आपने मैन्युअली किया था, ये सब कुछ वही काम कर रहा है। उसने सब कुछ आपको कि योर लॉगिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका टेस्ट केस सक्सेसफुली चल गया। तो इस तरह से आप प्लग एंड प्ले काफ़ी जितने चाहें टेस्ट केस प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। अब मैं एक पॉजिटिव टेस्ट केस बना लिया, अब एक और टेस्ट केस बना लेता हूँ जिसमें मैं कर लेता हूँ कि इनवैलिड कर लेता हूँ, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स इसको यही कह देते हैं, या फिर इनवैलिड, बस इनवैलिड टेस्ट इसको यही कह देते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं वही काम करूँगा जो पिछले टेस्ट में हुआ है। मैं जाऊँगा फॉर्म ऑथेंटिकेशन पे, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूँगा, ऐड कर दूँगा और इस पे कर दूँगा लॉगिन। अब मेरे पास आगे यूज़र नेम इज़ इनवैलिड, तो मैं इस पे भी सर्शन एक लगा देता हूँ कि इसको भी सर्ट करे। अगर मैं सही यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देता तो इसको टेक्स्ट को सर्ट कर दिया, और मैं अपनी उसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगा। अब इसको भी रन करके देख लेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमारा पिछला टेस्ट चला था, यानी कि ये पास हुआ है। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपने कहा कि मैंने, क्वेश्चन तो आया होगा सबका कि मैंने सेम चीज़ जो की है, मैंने लॉगिन किया है, उस साइट पे लैंड किया है, मैंने यूज़र नेम एंटर पासवर्ड किया है। तो ये काम मैं दोनों टेस्ट में कर रहा हूँ स्टार्ट में। इसको मैं कर देता हूँ, उसका इनवैलिड का इसको मैं कह देता हूँ, बल्कि रीनेम करके कह देता हूँ वैलिड, वैलिड टेस्ट। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो, हमने एक्सटेंशन देख ली है, टेस्ट बनाना देख लिया, अब हमने रीयूजेबिलिटी भी देखनी है कि हम वही काम जो हम अवॉइड कर सकते हैं हम देख सकते हैं। जैसे कि अब ये जो सब कुछ हो रहा है यहाँ तक, पासवर्ड वगैरह टाइप हो रहा है, ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमने सेम ये वैलिड टेस्ट में भी किया है काम और इनवैलिड टेस्ट में भी किया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस टेस्ट का। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, रीनेम की है, डुप्लीकेट, राइट क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन है। तो मैं इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रीनेम, और मैं कह देता हूँ इसको सिंपल लॉगिन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सेम काम करना तो रिकॉर्ड करूँगा। अब यहाँ पे दो कमांड्स आती हैं। अब यहाँ पे काम आएगी हमारी डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, यहाँ पे हमारी कमांड्स आ रही होंगी। तो आपने कोशिश करनी है डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह रीड करना है। इसमें काफ़ी सारी कमांड आनी है जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी हैंड्स ऑन। तो हम यहाँ पे दो कमांड्स हम यूज़ करेंगे। एक है हमारी रन कमांड। रन में क्या होगा कि आप किसी टेस्ट केस को दूसरे टेस्ट केस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जो काम कर रहे हैं वो लॉगिन का, आप वो सेम काम एक टेस्ट केस से दूसरे टेस्ट केस में इंटीग्रेट कर सकते हो। और हम ये क्या यूज़ करेंगे, स्टोर। स्टोर का हम क्या करेंगे यूज़, हम स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में कुछ हम अपना डाटा स्टोर करवाने के लिए।
वो भी मैं करके बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ लॉगिन पे। अभी इसको छोड़ देते हैं, ये अपने वैलिड और इनवैलिड टेस्ट पे आते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए ये असर्शन का, क्योंकि दोनों में यही चेंज है। उसमें इनवैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन हो रहा है, उसमें वैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इनको पहले डिलीट कर देता हूँ, सारों को सब कुछ डिलीट कर देता हूँ वैलिड और इनवैलिड टेस्ट में। अब मैं इस पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी काफ़ी सारी। उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे, आप खुद से ही कमांड्स ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है आपके पास कि आप खुद से चाह रहे हो कि मैं रिकॉर्ड ना करूँ, मैं टेस्ट केस को खुद से ही ऐड करूँ। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, कमांड दे सकते हो आप अपनी मर्जी की, जो मर्जी चाहो। यानी जैसे वहाँ पे टाइप की थी, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक की दे सकते हो। टारगेट का मतलब है यहाँ पे आपने किस एलिमेंट पे टारगेट बनाना है। तो यहाँ पे आप मैग्नीफाई कर सकते हो, वो तब होगा जब आपका टेस्ट केस चल रहा होगा, आप उसको बीच में पॉज करके थे। और यहाँ पे एरो जो होगा, एरो क्या होगा, सिलेक्ट टारगेटिंग पेज। आप जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हो, इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक एरो आ रहा था, इस एरो पे क्लिक करो तो आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, ताकि आप इस तरह भी कर सकते हो, आप उस एलिमेंट पे रहते हुए भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो ये वही काम कर रहा है जो ये हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा है। तो आप टारगेट करके उस एलिमेंट पे जा सकते हो। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब कुछ आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। अब इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं करूँगा इंसर्ट न्यू कमांड। तो ये कमांड है, हम यहाँ पे 3 कमांड्स ऐड करेंगे, मैं बताऊँगा कि आपको क्यों हम 3 कमांड्स ऐड करें। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अब हमें इससे ऊपर पार्ट का चाहिए जो हमारा लॉगिन का काम हो रहा था सब कुछ। तो वो लॉगिन में जो कुछ हो रहा था, हमें लॉगिन में से ये चीज़ जो असर्ट टेक्स्ट है वो हम क्या कर देंगे, डिलीट, क्योंकि हमें सेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। हम इनवैलिड टेक्स्ट पे थे। तो यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे कमांड में लिखूँगा रन। तो आप रन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपने क्या करवा देना, टारगेट अपने लॉगिन को, यानी कि जो आपका लॉगिन का टेस्ट होगा वो टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। और वैल्यू में यहाँ पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं 2 तरीके से आपको वैल्यूज़ आपके वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने दोनों टेस्ट केसेस में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे पासवर्ड वैलिड एक जगह पे आएगा और एक जगह पे क्या होगा, इनवैलिड। तो मैं इसमें पहले करता हूँ, यहाँ पे हमें चाहिए होंगी स्टोर की कमांड जो हमारी स्टोर कर सकें किसी की वैल्यू को। तो मैं करूँगा स्टोर टारगेट। यहाँ पे टारगेट का मतलब होगा कि आपकी जो एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ये इनवैलिड टेस्ट है तो मैं यहाँ पे वैसे कर दूंगा टेस्ट, और वैल्यू क्या होगी, यूज़र नेम, यानी ये वेरिएबल का आपका नेम है, ये आपके वेरिएबल का नेम है। सेकंड पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टोर, सेम चीज़, वही मैंने टारगेट है, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, तो फिर यहाँ पे भी मैं टेस्ट ही कर दूंगा, और मैं वैल्यू को कर दूंगा यहाँ पे पासवर्ड। मैंने यहाँ पे पासवर्ड कर दिया वैल्यू को। अब मैं यहाँ पे अपने जो एक्चुअल लॉगिन टेस्ट है मैं उस पर जाऊँगा। अब यहाँ पे हमने टारगेट करवाना है, तो यहाँ पे टारगेट करवाने के लिए आपने हम इस तरह से करते हैं कि अगर आपने किसी वेरिएबल को टारगेट करवाना है तो हम डॉलर साइन, करली ब्रैकेट्स, और जिस वेरिएबल को हमने टारगेट करना है, हमने पहले यहाँ पे यूज़र नेम करवाना है जो हमने उस टेस्ट में यूज़ किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम। ये हमारा यूज़र नेम टारगेट हो गया। अगर हम पासवर्ड पे जाएंगे, सेम चीज़ हम पासवर्ड भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉलर साइन, करली ब्रैकेट्स और पासवर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने टारगेट करवा दिया कि ये वेरिएबल्स होंगे, जब ये टेस्ट केस चलेगा तो ये वाले वेरिएबल्स वो खुद ही पिक कर ले। अब मैं इनवैलिड टेस्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे यूजर नेम था, यहाँ पे पासवर्ड था, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड स्टोर हुआ इसके अंदर, रन चला, रन ने क्या करना है, आपका लॉगिन टेस्ट वो यहाँ से यूजर नेम उठाएगा, यहाँ से पासवर्ड उठाएगा और यहाँ से असर्ट कर देगा। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। मैंने रन किया, उसने क्या किया, टेस्ट ऐड किया टेस्ट। तो उसने क्या कह दिया आपको, हमारा टेस्ट केस सही चला। उसने क्या कह दिया, उसने क्या किया, आपने अगर वो बड़ी जल्दी चल गया था, अगर आपने अगर देखा होगा तो उसने टेस्ट ही ऐड किया था, यानी कि हमारे जो यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर हुआ था उसने वही पिक किया था। ये सेम काम हम वैलिड टेस्ट में भी कर लेते हैं, लेकिन
वैलिड टेस्ट में हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे कि मैं एक और तरीके से आपको बता दूं कि आप एक और तरीके से भी वेरिएबल्स में वैल्यू सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें मैंने किया था स्टोर से सेव, अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टोर से सेव नहीं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसके ऊपर पहले एक कमांड बना देता हूँ, 3 रोज इंसर्ट कर देता हूँ, जब यहाँ पे 3, वही काम रन का, के रन की कमांड, लॉगिन के स्क्रिप्ट पे गया, सेम काम, लेकिन यहाँ पे जब हम स्टोर करवाएंगे तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट चलेगी। जैसे हम कुछ मेथड्स होते हैं हमारे, अगर कोडिंग यहाँ से कोडिंग के बैकग्राउंड के सारे ही होंगे तकरीबन, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहे होते हैं कुछ मेथड्स में। जैसे हम कह देते हैं उसको टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग या फिर इंटीजर, और हम उसकी वैल्यूज़ को क्या करवा देते हैं, रिटर्न। तो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट भी वही काम करता है। मैं यहाँ पे करवा दूंगा रिटर्न, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम था तो वो था टॉम स्मिथ, यूज़र नेम था हमारा, और वैल्यू आपकी क्या होगी, यूज़र नेम। सेम काम जो हमने उधर किया था इनवैलिड टेस्ट में, हमने स्टोर किया था टेस्ट को यूज़र नेम के अंदर, यही काम हम कर रहे हैं। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है टॉम स्मिथ को यूज़र नेम के अंदर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करेंगे, टारगेट करेंगे, टारगेट क्या करेगा, आपका रिटर्न करेगा वैल्यू को, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा पासवर्ड था, सुपर सीक्रेट पासवर्ड, और ये हमारी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, पासवर्ड के अंदर। तो सेम काम जो हमने इनवैलिड में किया था स्टोर के ज़रिए से, हमने वही काम कर दिया एग्जीक्यूट के ज़रिए से। हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको जब रन करूँगा, सी उसने क्या किया, टॉम स्मिथ हट के, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड, उसने पासवर्ड में मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसने पासवर्ड में कुछ मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जाते हैं, पासवर्ड था हमारा, रिटर्न पे गया, रिटर्न किया सुपर सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है, और ये हमारे टेस्ट आ गए। लॉगिन में उसने क्या किया, रिटर्न करेगा पासवर्ड, वैलिड टेस्ट, यहाँ पे हमारा पासवर्ड आया है, लॉग्ड इन अ स्केयर एरिया। तो यहाँ पे इसको दोबारा रन कर लेते हैं, अभी चलना चाहिए। योर पासवर्ड इज इनवैलिड, पासवर्ड क्यों नहीं ठीक आया, चेक कर लेते हैं, पासवर्ड इज इनवैलिड, इट इज वैलिड, let just delete the ones, maybe it is getting somewhere from cache। ओके, हमारे टेस्ट हैं, लॉगिन, वैलिड टेस्ट, ये लॉग्ड इन स्क्योर एरिया, और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट रन हुई है, इसने क्या है, रन किया है पासवर्ड, सुपर सीक्रेट पासवर्ड, इट शुड ओके, लेट्स ट्राई अगेन। Okay, something is wrong here. Okay, never mind. We can do with the store one. I'll see why it is not accepting this password. Okay, okay. So next thing is, here you can see there are three things: tests, suits, and executing. You can create your test suite. So और मैं क्या करूँगा, उस टेस्ट सूट में अपने टेस्ट ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये अभी के लिए मैं सिर्फ इनवैलिड टेस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमने टेस्ट सूट में क्या किया, अपने एक टेस्ट ऐड किया। तो अब यहाँ से हम चला रहे हैं, हम इसको एक और जगह से रन कर सकते हैं। हमारा जो सेलेनियम है वो आपकी कमांड लाइन को सपोर्ट करता है, कमांड लाइन रनर्स को। अगर यहाँ पे जाएं हम इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे आप चीज़ देख रहे होगे, कमांड लाइन रनर। अब कमांड लाइन रनर किस तरह से काम करता है,
आप अगर इसके नीचे जाएँ तो आपको आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रीरिक्विज़िट्स इसके क्या होने चाहिए कि नोड इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। नोड इंस्टॉल है, आप मैक में इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको विंडोज़ में सेपरेटली नोड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, npm install -d selenium side runner। आपने टर्मिनल में जाना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपने जब ये सेलेनियम साइड रनर इंस्टॉल कर लिया, आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है। अभी के लिए हम मैंने सेलेनियम किया, क्रोम किया इंस्टॉल। ये हमारा क्रोम ड्राइवर है, जिस पे हमारे टेस्ट केस ड्राइव होंगे, तो इसलिए इसको ड्राइवर कहते हैं, क्रोम ड्राइवर। आपके पास एज भी है, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, सफारी भी। आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो ये सेलेनियम आईडी सपोर्ट करता है। तो इसको रन करने का क्या तरीका है, आपने जब 2 कमांड्स रन कर ली, पहले मेक श्योर करें कि आपके पास npm इंस्टॉल है। npm इंस्टॉल करने के बाद आपने ये कमांड चलानी है, npm install -d selenium side runner अपने टर्मिनल में। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कमांड चलानी है क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, तो आपका क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। आपने उसके बाद जब आपने मेक श्योर किया आपका क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल है, तो पहले तो मैं सेव कर लूँ अपना प्रोजेक्ट, जो हमने टेस्ट सूट बनाया था, इसको हम सेव भी कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्यू ऑटोमेशन के नाम से ही, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जब ये सेव होगा, अब मैं जाऊँगा अपने रनर पे, तो मैं यहाँ से कमांड कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया। अब यहाँ पे आपने अपने पाथ देना। एक और चीज़ पहले मैं ये रन करने से पहले बता दूँ, जो हमारी फाइल सेव होती हैं, वो होती हैं हमारी साइड फॉर्मेट में। साइड फॉर्मेट इज़ शॉर्ट फॉर सेलेनियम आईडीई, इट इज़ शॉर्ट फ्रॉम सेलेनियम आईडीई। और जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा जेसन फॉर्मेट, जो बेसिक्स जेसन फॉर्मेट होता है टेस्ट केसेस का। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम इस तरह से भी टेस्ट केस बना सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नॉन प्रोग्रामर वंस। और ये हम सिर्फ सेलेनियम आईडीई जो प्रपोज करने का जो आइडिया है, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द नॉन प्रोग्रामर वंस। तो हम सबको साथ लेके चलने के लिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तो हम जब सेलेनियम पे आए प्रॉपर सेलेनियम वेब ड्राइवर पे, जब आप सेलेनियम पे आ जाएंगे तो आप पीछे मुड़ कर देखेंगे नहीं सेलेनियम आईडीई पे, क्योंकि सेलेनियम इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ रनर के ऊपर अपने। सो रनर के ऊपर गए हम, यहाँ पे सॉरी टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे आपने शुरू में लिखा है सेलेनियम साइड रनर, यहाँ पे आपने किया पाथ देना है अपनी फाइल का, तो मेरी फाइल का पाथ ये है, वो है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, इट इज डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज क्यूए ऑटोमेशन साइट। जब मैं इसको रन करूँगा तब देखो कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउज़र ओपन हुआ है। ये हम अपनी टर्मिनल से चला रहे हैं, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो क्या बता रहा है, क्रोम इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा क्रोम इस कंट्रोल में एक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। जब भी आप किसी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके टेस्ट जाओगे तो आपके पास ये ज़रूर आएगा। तो उसने वही काम किया जो उसने किया, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टेस्ट चले, 2 टेस्ट पास और 2 टोटल थे हमारे, यानी कि हमारे दोनों टेस्ट पास हुए। हमने ये क्या किया है, कमांड लाइन से अपने टेस्ट रन किए। अगर आप वो काम नहीं करना चाह रहे कि आप आईडी पे जाके टेस्ट केस चलाना नहीं चाह रहे, तो आप ये टर्मिनल से भी कर सकते हैं। और वही जब हम आएँगे सेलेनियम के ऊपर भी, तो हम मोस्टली काम टर्मिनल में ही कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि टर्मिनल का हम जो एक्चुअल पर्पज़ है हमारा टेस्ट केसेस का, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक रिलीज़ आ गई है और आपके 100 एंड 200 टेस्ट केसेस हैं, तो आप सबको देखने के लिए बैठोगे तो नहीं टेस्ट केस चला के। उसका पर्पज़ यही है कि आपने उसको बैकग्राउंड में लगा देना रन। अगर आपने देखना ही है बैठ के तो वो आप मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन आपने टाइम बचाना है तो हम उसको चला रहे होंगे हेडलेस मोड पे। जब हम सेलेनियम पे आएँगे तो हम तब देखेंगे हम मोस्टली टेस्ट केसेस अपने हेडलेस मोड पे रन कर रहे होंगे। तो हमारा ये था कमांड लाइन। अब कुछ हमारा जो सेलेनियम आईडी है वो सपोर्ट करता है कंट्रोल फ्लोज़ को भी। कंट्रोल फ्लोज़ हमारे कुछ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस हैं
जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं इफ एल्स वगैरह, हमारे डू व्हाइल, ये सब कुछ हमारे क्या कंट्रोल फ्लो। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स का, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को आपने अच्छी तरह रीड करना है। मैंने चैट में शेयर की है, तो अपने पास सेव कर लें। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन को टाइम देना है अगर आप वाकई ही हैंड्स ऑन इस पे एक्सपीरियंस चाह रहे हैं आईडी पे, क्योंकि आईडी इज़ द बेसिक्स फॉर सेलेनियम। क्योंकि और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आईडी ही, जो हमारा सेलेनियम के आने से पहले आईडी ही था, जो जिस पे टेस्टिंग वगैरह हम पहले जो नॉन कोडलेस टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी, तो आपको आईडी की बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो मैं अपने उस पे जाता हूँ, सेलेनियम आईडी पे। मैं यहाँ पे एक नया टेस्ट केस बनाता हूँ, सॉरी टेस्ट सूट पे चला गया है। मैं यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे बनाता हूँ नया टेस्ट केस। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कंट्रोल फ्लो, इसको कह देता हूँ कंट्रोल फ्लो। अब मैं इसको कह देता हूँ कंट्रोल फ्लो। यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से कैसे डील कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर डाटा सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे भी वही काम करूँगा कि मैं यहाँ पे करूँगा कि चीज़ मैं चेक कर लूँ, ठीक है। किधर गया कंट्रोल फ्लो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाऊँगा एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट पे, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट पे टारगेट क्या करूँगा, रिटर्न मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ए कह देता हूँ रिटर्न, कि रिटर्न ए करे किसके अंदर, माई वेरिएबल। एक वेरिएबल मैंने बता दिया माई वेरिएबल के नाम से, जो ए की वैल्यू रिटर्न कर रहा है माई वेरिएबल के अंदर। अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कंट्रोल फ्लो। जब आप नई कमांड पे क्लिक करोगे लाइन पे, तो यहाँ पे आप जब इफ़ लिखोगे, आप देखोगे यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल रही है इफ़ की। आप जब यहाँ पे वही जो हम लॉजिक कोडिंग में लगाते थे वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। कमांड इफ़ की आई, टारगेट में आपका आ जाएगा डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स माई वार इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू, ये इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि अगर वो ए है तो हमारी क्या हो जाएगा, वैल्यू सेव हो जाएगी आउटपुट के अंदर। अगर वो ए हो जाएगा, या फिर हम अभी यहाँ पे सेव नहीं कराते, हम सिर्फ यह करा रहे हैं कि इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ माई वेरिएबल इज इक्वल टू ए। तो हम क्या कर देंगे इसके नीचे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, कि अगर हमारी जो माई वेरिएबल की वैल्यू ए है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो जिसमें हम करेंगे रिटर्न ए, इसके अंदर आउटपुट के अंदर हमने आउटपुट के अंदर क्या कर दिया, एक रिटर्न कर दिया। और उसके नीचे हम एक और चीज़ लगा सकते हैं जो हम काम करते हैं एल्स इफ। सेम वही चीज़ है जो हम कोडिंग में करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में एल्स इफ। इसमें क्या होगा, सेम वही चीज़, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स माई वॉर इज इक्वल टू सॉरी बाहर आएगा ये, इज इक्वल टू बी। अगर ये बी हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एक और कमांड लगाएंगे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट की, जो क्या करेगा, रिटर्न आपकी करेगा बी आउटपुट के वेरिएबल के अंदर। वही चीज़ हम फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, हमारा एक सिंपल एल्स आ जाएगा जो ब्रेक करेगा अगर ऊपर दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कर देता हूँ एल्स रिटर्न, बल्कि नहीं, यहाँ पे एल्स में तो कुछ कंडीशन नहीं आएगी हमारी। हमारी इसके बाद हो जाएगी एक सिंपल सी एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट जिसके अंदर हमारी रिटर्न होगी सी अंदर आउटपुट के अंदर। और इसके बाद हमने क्या करना है, अपना कंट्रोल फ्लो हमारा लग गया, उसको एंड करने के लिए हमने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, सिंपल एंड की। इसको एंड करने के लिए हमने एंड की कमांड यूज़ की। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब ये काम तो हमने कंट्रोल फ्लो का कर लिया, इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं असर्ट। मैं लगा रहा हूँ असर्ट, हमारा क्या है टारगेट आउटपुट, सॉरी असर्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल था माई वेरिएबल। तो हमारी यहाँ पे हम कह देते हैं कि टारगेट करवाओ
वेरिएबल को वैसे ये इसको गेट करना चाहिए उसके बगैर भी, तो हमारे क्या हो, ये हो वैल्यू। तो इसको करवा देंगे। अगर हम इसको रन करके देखें, इसने क्या किया, उसने कहा कि ए के इक्वल, ये यहाँ पे गया, हमने सॉरी यहाँ पे हमने करना था आउटपुट, हमने इसको किया रिटर्न। अब करते हैं रन। उसने क्या किया है हमारा कि यहाँ पे हमने दिया था रिटर्न करवाई थी माई वेरिएबल के अंदर ए, और यहाँ पे हमारा आके कंट्रोल एग्जीक्यूट की स्क्रिप्ट उसने रिटर्न ए किया। हम यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको असर्ट करूँ, सॉरी चीज़ मिस होगी यहाँ पे, अब रन करने का, तो उसने यहाँ पे मेरे ख्याल से उसने इसको गेट नहीं किया। वही मसला जो उसमें आ रहा था कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई है और नीचे उसको लेके नहीं आ रहा। इसको मैं करके देखता हूँ। लेट मी गिव, I'm just going to open it again. Going to documents. ओके, हमारे एग्जीक्यूटिंग टेस्ट में कौन कौन से हैं हमारे टेस्ट हैं, इसमें इसने, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल फ्लो में उसने क्या किया, सॉरी मैं गलत टेस्ट ओपन कर चुका हूँ, ओपन अगेन कि ऑटोमेशन डॉट साइड। ओके, मैंने सेव नहीं किया था, वो डिलीट हो गया। तो अगर मैं इधर आऊँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो उसने क्या किया था, टारगेट किया था आउटपुट को ए को, क्योंकि मैं अपना टेस्ट गलती से डिलीट कर बैठा हूँ, सेव नहीं किया। मैं इसको दोबारा जल्दी से, मुझे 2 मिनट से मैं जल्दी से बना दूँ ताकि मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखा दूँ। हमारी यहाँ पे थी एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, रिटर्न, उसने आया ए। मैं जल्दी से इसको बना लूँ ताकि शो कर सकूँ आप। इफ़ कंडीशन में उसने क्या किया, आपकी माई वॉर, और उसने एग्जीक्यूट कर दी स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट करके उसने क्या, रिटर्न, रिटर्न ए। अगर ये स्क्रिप्ट चल जाती है, वैल्यू किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। और फिर उसने क्या किया, एल्स इफ अगर हमारी, और उधर मैं कंडीशन भूल गया हूँ, मैं लगा देता हूँ, क्वेश्चन अगर नोट किया है तो कंडीशन लगाना भूल गया हूँ, अगर इक्वल होती है बी के, यहाँ पर कंडीशन भूल गया था, इक्वल होता है ए के, तो एग्जीक्यूट करेगा स्क्रिप्ट ये आउटपुट के अंदर। अगर ये होता है बी होता है तो स्क्रिप्ट करेगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट जिसके अंदर वो करेगा रिटर्न बी आउटपुट के अंदर। उसके बाद हमारा सिंपल एल्स, एल्स हमारा सिंपल, एल्स के बाद हम लगा देंगे अपना एक सिंपल स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, जो रिटर्न करेगी हमारा, सॉरी रिटर्न सी अंदर आउटपुट के अंदर। और इसके बाद हम कर देंगे एंड, एंड, और इसके बाद हम कर देंगे लास्ट में assert, assert आउटपुट, टारगेट हमारा आउटपुट है, होनी चाहिए ए। और इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लूँ कि दोबारा से हमारा मिस ना हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको करूँगा रन। अब आप देख रहे हैं कि हुआ क्या, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई। अभी मैंने सेव कराई थी वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने सेव कराई थी, यानी कि आपका यहाँ तक कंट्रोल फ्लो आया, उसने आउटपुट के अंदर ए सेव कर दी, मैंने सर्ट नीचे लगाई कि आउटपुट के अंदर टारगेट या आउटपुट को उसके अंदर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसके वैल्यू को कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ बी, तो इसको क्या करना चाहिए, टेस्ट को फेल होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि मैंने आउटपुट के अंदर तो मैंने उससे सेशन लगाई है कि आउटपुट के अंदर तो होनी चाहिए ए, उसको मिल रही है बी, तो मैं यहाँ पे अगर इसको बी कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, फिर से ये आया यहाँ पे कंट्रोल फ्लो आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी assert there is something wrong here कि यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको एल्स इफ के बाद यहाँ पे रिटर्न वैल्यू उसने करा दी सेव बी की आउटपुट। चलो नेवर माइंड, हमने इसको देख लिया कि हमारा, अच्छा मैं आपको कुछ ऑप्शन अब यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने टेस्ट केसेस एक साथ भी रन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप टेस्ट केसेस रन एक साथ करें आईडी के थ्रू, अगर आप यहाँ से रन करेंगे टर्मिनल से, वो क्या करेगा, आपके टेस्ट केसेस एज अ सूट रन करेगा। अब सूट में होता क्या है कि अगर आपके काफ़ी सारे सूट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जस्ट अगर यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सूट हैं, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही दिखाता हूँ कमांड लाइन रन्स, तो यहाँ पे उस इन्होंने कुछ आपको लिखा है, यू कैन रन ऑल योर सेलेनियम टेस्ट ऑन अ ब्राउज़र इन पैरेलल एंड विदाउट नीडिंग एंड कोर। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है जो पता होनी चाहिए कि जब आप कमांड लाइन से रन कर रहे हो, अगर आपके पास ज़्यादा सूट्स हैं तो आपके टेस्ट क्या हो रहे होंगे, आपके टेस्ट चल रहे होंगे, जो सूट्स हैं सूट्स पैरेलल चल रहे होंगे, टेस्ट आपके उसमें चल रहे होंगे सिक्वेंशली। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने अवॉइड कैसे करना है, अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग सूट में जाऊँ फॉर एग्जांपल QA, यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग है रन इन पैरेलल, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस हैं तो अब आप उसको वेट तो नहीं करोगे कि आपके फॉर एग्जांपल आपस में डिपेंडेंट नहीं है। मैं अभी बात करूँ कि हमारे टेस्ट केसेस, लेकिन मोस्टली जब हम सेलेनियम पे जाएंगे तो हमारे टेस्ट केसेस आपस में डिपेंडेंट होंगे, जो क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका टेस्ट हो सकता है कि पिछले टेस्ट पे डिपेंड कर रहा हो कि उसमें कुछ सेशंस लगी हैं तो अगला टेस्ट चलेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि पैरेलल एग्जीक्यूशन हमने करनी है, तो उसमें आपको ये चेक क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा ताकि आपका टेस्ट केसेस पैरेलल में सबमिट करें। तो आपका जब डिफॉल्ट ये सूट रन होगा तो आपके टेस्ट केसेस क्या चलेंगे, पैरेलल में चलेंगे। ये था अभी के लिए, लेकिन अभी हमारा एक टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक है जो है हमारा प्लगइन्स का। हमारा एक प्लगइन है जो सेलेनियम आईडी ही सपोर्ट करता है, आइज एप्लीटूल आइज। अगर किसी को पता हो पहले यूज़ किया तो वो जानता होगा कि हम साइप्रस में भी एप्लीटूल आइज यूज़ कर सकते हैं, हम सेलेनियम के अंदर भी। इट इज़ समथिंग काइंड ऑफ विजुअल टेस्टिंग, कि आपने अपने टेस्ट केस के अंदर विजुअल टेस्टिंग को ऐड कर दिया कि कुछ होते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस आपकी वेबसाइट में, आपने वेरीफाई करना होता है कि वेबसाइट में कॉस्मेटिकली कोई चेंज तो नहीं आया, कॉस्मेटिकली कोई मसला तो नहीं आया। तो आपने उस चीज़ को अगर करना है तो आपका हमारे पास एक प्लगइन होता है एप्लीटूल आइस। यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने जाना है क्रोम वेब स्टोर के अंदर, आप एक्सटेंशंस के अंदर जाओगे, आपने आप लिखना है एप्ली टूल्स, एप्ली टूल्स लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एप्ली टूल्स फॉर सेलेनियम IDE। आपने इसको क्या कर देना है, अपनी एक्सटेंशन को ऐड कर देना है क्रोम में। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक पूरा वो ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। तो यानी कि अब यहाँ पे मैं जब जाऊँगा, जब आप ओपन करोगे एप्ली टूल फॉर सेलेनियम IDE, तो अभी के लिए तो इसने इस तरह से किया, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको कैसे काम करेगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्रोम। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिमूव नहीं होगा, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब मैंने इसको किया ऐड टू क्रोम, मैंने एक्सटेंशन को ऐड किया, मेरी एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अब मैं एप्ली टूल्स पे जाऊँगा तो आपको सबसे पहले एक चीज़ देखने को मिलेगी, इट विल आस्क फ्रॉम यू द API की। अब ये API की क्या चीज़ है, अब अगर आपने एप्ली टूल्स पे साइन इन नहीं किया तो आपने साइन इन कर लेना अपने गूगल अकाउंट से, किसी से भी।
जब आप साइन इन कर देंगे एप्ली टूल्स पे, मैं इसका भी आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आइज का, एप्ली टूल आइज, जस्ट लेट मी कॉपी इट एंड शेयर इट इन द chat. I think we have left a little time, सो मैं जस्ट जल्दी करूँगा ताकि आपको पता लग जाए। अब मैं यहाँ पे करूँगा एप्ली टूल फॉर आईडी ही, यहाँ पे मेरी, आपने क्या करना है, जब आप लॉगिन कर जाओगे तो आपने इस पे क्लिक करना है और आपने एपीआई की पे क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके आप जब अपने प्लगइन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसे सेव कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें लॉगिन कर देंगे। उससे पहले मैं इसको चीज़ से बताने से पहले, इससे पहले कि हमारा अगर सेशन दरमियान में बंद भी हो जाए, तो मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर कर दूं जो आपकी स्टडी के लिए हैं नेक्स्ट सेशन से रिलेटेड। हमने नेक्स्ट सेशन में हैंड्स ऑन अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है सेलेनियम वेब ड्राइवर के अंदर। अब सेलेनियम वेब ड्राइवर के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे, जो मेन टॉपिक होंगे कि हमारा फ्रेमवर्क कैसे बिल्ड होता है, वेब एलिमेंट लोकेटर स्ट्रेटजीज जो वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है कि आपने किस तरह से वेब एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हो, गिट रेपोजिटरी सिस्टम जिसमें मैं कुछ हेल्प अपने कोलीग से भी लूँगा साथ, जो मोस्टली अगर आप कोड राइट कर रहे हो तो आपके पास एक रेपोजिटरी सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जो आपकी कोड सेफ्टी के लिए, जहाँ पे आप अपना कोड पुश वगैरह कर सको। फिर हमारा है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, हम करेंगे टेस्ट एनजी करेंगे, जो आपका एक्चुअली एक फ्रेमवर्क किया टेस्ट एनजी, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं रनिंग के लिए, अपने टेस्ट केसेस को रन करने के लिए। रिपोर्टिंग की भी हम देखेंगे, अगर हमारे सेशन में बैंडविड्थ हुई तो रिपोर्टिंग मैं ज़रूर करवाऊंगा। फिर हमारी एक बोनस, हमारा जो एपीआई का हमारा बोनस सेशन होगा जिसमें हम एपीआई टेस्टिंग को इंटीग्रेट करेंगे सेलेनियम के साथ। फिर हमारे पास आ जाएगा सेलेनियम विद पाइथन, जिसमें अली अहमद होस्ट कर रहे होंगे, जिसको उन लोगों के लिए मोस्टली जिन्होंने डिमांड की थी कि सेलेनियम पाइथन के साथ भी करवाएं। तो आपको इससे पहले कुछ विजिट्स होने चाहिए। आपने इंटेलिजे इंस्टॉल कर लेना अपने पास, आपके पास जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आपको मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 लिंक्स हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। एक लिंक है हमारा जिसमें ये था एप्लूटूलाइज, एक लिंक है, अगर आपने सेलेनियम आईडी को और थोड़ा सा ब्रीफली आपने जाना है इसके अंदर, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, तो आप इस लिंक पे जाके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते आप ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी साइट है। फिर आपने जावा का एक बेसिक कोर्स है, क्योंकि हम सेलेनियम जावा के साथ करना चाह रहे हैं तो आपको जावा की बेसिक्स पता होने चाहिए। तो जावा की बेसिक्स अगर आपको पता होंगी तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि हम जब स्टार्ट करेंगे हैंड्स ऑन तो आपको उसका पता होगा। तो मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ कुछ, जिसमें हमारा सेलेनियम आईडी ही भी है और बेसिक कोर्स है जावा का। उसके बाद अगर मैं ये कर लेता हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, मेरे ख्याल से हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमारा जो एप्ली टूल्स आइस था विजुअल टेस्टिंग, हम इसको नेक्स्ट सेशन के साथ अपने कंबाइन कर लेंगे। तो अब मैंने, जी जी ओके। उसामा भाई, मेरा एक सवाल है। जी अच्छा, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अभी हमने बेसिकली कोडलेस टेस्टिंग की है, तो जब जी हम लोग कोडलेस टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर हम लोग कोड में जाएंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, तो दोनों में फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है? मतलब अगर मैं जी कोड कोड जी करता हूँ टेस्ट केसेस अपने, उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि मैं मैनुअली भी तो टेस्ट कर ही रहा हूँ ना, उस पर रिकॉर्ड जी करके सिंपली मैं वो भी काम कर सकता हूँ। जी तो कोड जी। स्पेसिफिकली का क्या फ़ायदा होगा? अब मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज लिमिटेशन इन कोडलेस टेस्टिंग। अब आपकी लिमिटेशन इस तरह से आ